Hello everyone, this is Abdullah Shami. Today we are going to discuss about the Marxism. और हम मार्क्सिज्म के हवाले से वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्सिज्म विद द कंटेक्स्ट ऑफ द फैमिली पेपर 2. ठीक है जी. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द की सोशियोलॉजिस्ट रिलेटेड टू द मार्क्सिज्म एंड द कोर आइडिया ऑफ मार्क्सिज्म रिवॉल्व्स अराउंड द economic inequality within the society. ठीक है जी. The first and very important sociologist related to the Marxism is all about Karl Marx himself. We need to understand this thing, that what is all about the Karl Marx approach. Actually, Karl Marx sees the Western societies as bourgeoisie, or you can say the capitalist societies, where there is all about the economic inequality exists. What is all about the capitalist society? There are two basic classes in capitalist societies. Number one is all about the bourgeoisie or the capitalist class, who owns the means of production, and the another class is the proletariat class, who works for the capitalism, who works for the capitalists, who works in those means of production, or you can say the industries. It means there is a working class and there is a capitalist class, and there is inequality within the society as a capitalist own all the means of production. Okay. If we move forward, there is an impact of the cultural institutions like family, education, media, religion. Actually, these cultural institutions just want to make sure one thing: there should be the stability within the society, just by creating an ideology in the favor of capitalism. As the capitalists just want to create an ideology in the favor of capitalism with the help of these cultural institutions, as family, education, media, religion. Just make sure one thing: they just want to stabilize the society. They just want to work as a stabilizing agent within the society. They don't want any change. But the Marxist is a conflict approach who demands change within the society. This is all about the key idea of Marxism. If we move forward, there's a concept coined by the Marxists. This is all about the economic determinism. Economic determinism stands for what? You just need to understand this thing. There are two basic terms to understand the economic determinism. First, we need to understand the term determinism. Determinism means a structural force drives an individual action. There is some structural force behind an individual action. So if we move forward in terms of this, so we need to understand the two main concepts. Number one is all about economic base, and number two, the second concept is ideological superstructure. The whole structure of society is just like this. Let's suppose there's a rectangle, and there is this is all about complete society. And if we talk about this complete society, there is an economic base. On the basis of that economic base, there is a whole ideological superstructure exists. Okay. So the economic base is controlled by the capitalist, or you can say the workplace. Workplace is a social institution जो economic base पर काबिज है. ठीक है. यानी कि पूरी इकोनॉमी जो है वो बेस करती है वर्कप्लेस के ऊपर. सही है. एंड द वर्कप्लेस इज कंट्रोल्ड बाय द कैपिटलिस्ट. ठीक है क्या? And if we talk about that economic base, the whole ideological superstructure is based around that economic base. Ideological superstructure क्या चीज़ है? All cultural institutions like family, education, media, religion, these all are the ideological institutions. It means this ideological superstructure is based on economic base. This ideological superstructure is based on economic base. अब जिसके हाथ में बेस होगी वो तमाम चीज़ें कंट्रोल करेगा. इट मीन्स द वर्क प्लेस इज गोइंग टू कंट्रोल ऑल द सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली, एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन. Okay, how is this so? As all these social institutions are working as an ideological state apparatus, they are developing, establishing ideology in the favor of capitalism, as this theory was given by the Althusser. Okay. तो इफ़ यू मूव फॉरवर्ड, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके जाएं. अब क्या कर रहे हैं? अब कॉन्सेप्ट क्या है? आइडिया क्या है? ऑल द कल्चरल इंस्टीट्यूशन आर एस्टैब्लिशिंग द कैपिटलिज्म विद इन द सोसाइटी. हाउ? वी नीड टू एलैबोरेट इट फर्दर ऑन. Once the Marxists are against the functions of the family. Okay, Marxists are against the functions of the family, like what? Socialization. According to functional, socialization is one of the key important function of the family. But according to Marxists,
The socialization may lead towards the capitalism within the society, because socialization lead to make sure the to execute the ideological state apparatus within the individual's mind, to establish an ideology in the favor of capitalism within the individual's mind. The socialization is a key function. Okay, तो जब फंक्शनलिस्ट को चाहिए, वो चाहते हैं फंक्शंस इसलिए हों ताकि सोसाइटी में स्टेबिलिटी मेंटेन है। मार्क्सिस्ट चाहते हैं कि फंक्शंस डेवलप, फंक्शंस होंगे तो स्टेबिलिटी आएगी, बट दे डिमांड फॉर द चेंज। फंक्शनल मार्क्सिस्ट जो हैं वो चेंज डिमांड करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्क्सिज्म के हवाले से, तो दे आर अगेंस्ट द इनहेरिटेंस पॉलिसी कि भाई एक बच्चे के पास, एक बाप के पास पैसा था, उसने सारा बच्चा अपने बच्चों को दे दिया। इट मीन्स मटीरियल कैपिटल इज इनहेरिटेड बाय द नेक्स्ट जनरेशन एज एन एस्क्राइब्ड स्टेटस। तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी की जो एक क्लास होगी वो इनहेरिट करती रहेगी अब अपनी वेल्थ को अपनी दूसरी जनरेशन के अंदर। सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है। इसके अलावा मार्क्सिस्ट आर अगेंस्ट द प्राइवेटाइज फैमिली कॉन्सेप्ट के, प्राइवेटाइज पर्टिकुलरली प्राइवेटाइज न्यूक्लियर फैमिली क्या करती है कि इंसान के जो सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी होती है, जो वर्कर्स होते हैं वो, उनको इनइक्वालिटी का एहसास ही नहीं होता। वो अपनी सिर्फ इमीडिएट नीड्स को, अपनी प्राइवेट फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए इनइक्वालिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ऑपरेशन सहते रहते हैं। ठीक है जी। इफ़ इट मूव फॉरवर्ड, जो कहता है कि भाई आपका जो ये फैमिली स्ट्रक्चर है इज़ डेवलप टू रिप्लेस कम्युनिज्म बाय द कैपिटलिज्म, यानी कैपिटलिज्म को लाने की साजिश है। ठीक है जी। तो इस हवाले से अगर हम बात करते हैं अनदर सोशियोलॉजिस्ट के हवाले से, एंजल्स, जिनकी बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, उन्होंने इनहेरिटेंस पे बात की, अगेंस्ट इनहेरिटेड के हवाले से। मेरे पास सैम्पल आंसर भी इसका बनाया हुआ है, मैं आपसे शेयर करूंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के हवाले से। उसने एक्चुअली एंजल्स ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया जेंडर रोल्स के हवाले से, कि उसने कहा कि हाउस वाइफ आर द अनपेड लेबर एंड द चाइल्ड केयर सोशलाइजेशन इज गोइंग टू स्टैब्लिश द, उसने जो चाइल्ड केयर का फंक्शन था, उसने कहा था कि ये जो चाइल्ड केयर सोशलाइजेशन है ये एक्चुअली कम्युनिस्ट स्टेट की जिम्मेदारी है रादर देन द हाउस वाइफ्स। ठीक है। तो उसने जेंडर रोल्स को, जो आपका फीमेल को लिबरेट करने के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया। ठीक है जी। लेकिन एंजल्स के हवाले से जो सबसे बड़ा नेगेटिव एलिमेंट हमें नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि हिस्टोरिकल एविडेंस इनकी थ्योरी में इतने ज़्यादा नहीं थे। उन्होंने सिर्फ बहुत सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट की बेसिस पे अपनी किताब में कही हैं। सेकेंड एलिमेंट है इसके, इनकी जो थ्योरी थी जो उन्होंने प्रेजेंट की थी 1902 के अंदर, 1917 के अंदर जो रशियन रेवोल्यूशन आया था उसमें ये चीज़ एग्जीक्यूट की गई, लेकिन वहाँ पर ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं हो सका। इसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि ये बहुत महंगा मॉडल था, यानी कि बहुत एक्सपेंसिव था। स्टेट के लिए भी पॉसिबल नहीं था कि बच्चों की चाइल्ड केयर ख्याल रखे, और हाउस केयर के इसने जो एंजल्स ने फंक्शन दिया था कि भाई स्टेट जो है, जैसे आपका लॉन्ड्री वगैरह की सर्विसेज हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो स्टेट प्रोवाइड करे और वहाँ पर लेबर रखे और वो उनको लेबर को पैसा मिलता रहे। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें बहुत महंगी थी, तो इसका साबित करना बड़ा मुश्किल था। तो इस वजह से क्या हुआ कि भाई बहुत सारी पॉलिसीज़ स्टैलिन लेनिन ने ऐसी पॉलिसी बनाई थी जो कोर आइडियाज़ ऑफ मार्क्सिज्म से अगेंस्ट हो जाती थी, क्योंकि वो बजट को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो एंजल्स ने एक आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफिकल आइडिया प्रेजेंट कर दिया, आगे जाके वो कुछ हद तक एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई उसको, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। तो ये कह सकते हैं कि आप एग्जीक्यूशन के, ऑपरेशनलाइजेशन के कुछ इशूज़ थे एंजल्स की थ्योरी के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जेड्सकी के हवाले से, तो जेड्सकी ने जो किताब लिखी थी कैपिटलिज्म द फैमिली एंड द पर्सनल लाइफ, 1976 में लिखी थी ये किताब। ठीक है। और उसने वुमेन लिबरेशन के बारे में बहुत काम किया था, क्योंकि देखिए मार्क्सिस्ट का जो बेसिक आइडिया है ना, उनका आइडिया ये एज मेल इज परफॉर्मिंग द इकोनॉमिक रोल विद इन द फैमिली स्ट्रक्चर, द फैमिली के हवाले से मार्क्सिस्ट का आइडिया, एज मेल इज परफॉर्मिंग द इकोनॉमिक रोल विद इन द फैमिली स्ट्रक्चर, द मेल बिकम कैपिटलिस्ट। दोबारा सुनिएगा, एज मेल इज परफॉर्मिंग द इकोनॉमिक रोल विद इन द फैमिली स्ट्रक्चर, द मेल बिकम कैपिटलिस्ट, एंड फीमेल इज परफॉर्मिंग द डोमेस्टिक रोल विद इन द फैमिली स्ट्रक्चर, फीमेल बिकम अ डोमेस्टिक लेबरर। तो वो उस चीज़ को लिबरेट करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर एग्जाम में सवाल आ जाए द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन, द मेन फंक्शन ऑफ फैमिली इज टू सपोर्ट द कैपिटलिज्म, तो उसके अंदर आप अल्थूजर को डाल सकते हैं, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस। जेड की इकोनॉमिक प्रोविजन की थ्योरी है। ठीक है। यानी कि टारगेट ऑफ एडवर्टाइजर की थ्योरी है जेड की। ठीक है। कि द चिल्ड्रन आर द फैमिलीज द बिगेस्ट टारगेट ऑफ एडवर्टाइजर चाहता है इनको बेचूँ। ठीक है। इसके अलावा स्टेबलाइजिंग द फैमिली इज वर्किंग एज अ स्टेबलाइजिंग फोर्स विद द फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली जो हो गया। ठीक है। ये भी जेड की अप्रोच थ्योरी में आती है चीज़। तो आप इन तमाम चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहें तो लिख सकते हैं क्वेश्चन अपने पास, evaluate the view that the main function of the family is to support the capitalism और the economic inequality, इस तरह से सवाल आ सकता है।
अब इस वीडियो के अंदर मैं एक और चीज़ पे मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट पे ही बात करना चाहता हूँ, ठीक है। बर्नस्टन जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट था उसने डोमेस्टिक लेबर सपोर्ट के हवाले से बात बताया था कि एक्चुअली बर्नस्टन जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट थी उन्होंने डिफाइन किया था कि भाई डोमेस्टिक लेबर सपोर्ट द कैपिटलिज्म, क्योंकि ये जो कैपिटलिज्म का सिस्टम है वो चलता ही डोमेस्टिक लेबर की वजह से है, क्योंकि वो फीमेल जो होती है घर में काम कर रही होती है, मर्द बाहर काम कर रहा था, वो पैसा लेके आता है, ये अनपेड लेबर से अपना काम करवाता है। ऑटोमेटिकली क्या सोसाइटी के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी भी है और क्लास इनइक्वालिटी भी। एक्चुअली मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट जो कोर आइडिया वो ये कि देयर इज एन इम्पैक्ट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी ऑन क्लास इनइक्वालिटी, यानी कि दोनों का एक दूसरे क्लास इनइक्वालिटी एंड जेंडर इनइक्वालिटी आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास फ्रैंक एस्ले की थ्योरी आती है जिसके अंदर हाउस वाइफ एक्ट एज अ स्पंज टू सोक अप द मेंस फ्रस्ट्रेशन अबाउट द वर्क। ये एस्ले की भी थ्योरी है कि भाई जो मेल फीमेल्स हैं वो एक स्पंज का काम रोल प्ले करती हैं ताकि जो मेंस की फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करने के लिए रिलेटेड टू द वर्क, यानी कि वो वर्क इनइक्वालिटी को भूल जाता है। फिर फीले की थ्योरी आती है, ठीक है, फादर डोमिनेटेड फैमिली कंडीशन चिल्ड्रन टू एक्सेप्ट अथॉरिटी, यानी कि वो जो आपकी जो फादर डोमिनेटेड यानी कि पेट्रियार्कल फैमिलीज होती हैं वो क्या करती हैं कि वो बच्चों को ट्रेनिंग ऐसे करती हैं कि वो दे विल एक्सेप्ट द अथॉरिटी, दे विल एक्सेप्ट द कैपिटलिज्म इटसेल्फ, यानी कि वो कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट कर लें, ठीक है जी। तो ये एक हमारे पास कोर आइडिया क्रिएट होता है इस हवाले से। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंशाल्लाह फेमिनिज्म के हवाले से। अपना बहुत ख्याल रखें, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।